absorbed by the plant, and this chlorophyll traps the sunlight and it prepares a food. Food is in the form of a glucose, okay, and it releases the essential oxygen which is important for the survival. So we come to know there are the requirement for the process of photosynthesis is carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. All the things, four things are important for what? For the preparation of the food. Now I'll just tell you one by one the requirement of photosynthesis. Number one, water and minerals. Water and minerals are absorbed by the roots of the plant, okay, with the help of a vessel that is known as the xylem vessels, okay. It's runs like a pipe through the roots to the stem, and it helps in the movement of water from the ground, from the soil to the upper portion or other portion of the tree and to the leaf for the preparation of the food. The second thing which is required is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कहाँ से मिलता है इनको? एटमॉस्फेयर से मिलता है. बट just carbon dioxide is very important for the green plants to process of photosynthesis, okay. ये किससे कैरी होता है? It is carried by these seeds. This is a tiny pore which is present under the leaf, okay, and it is surrounded by the cell. This is known as a guard cell. This is a what known as stomata. It is a closed. It is in closed form, it is in a open form. So opening and closing of this stomata helps in the exchange of gases within the leaf, or in other words we say it helps in going off, in taking off carbon dioxide from the कहाँ से? एटमॉस्फेयर से टू द लीफ. फॉर व्हाट? किस लिए जरूरत होती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ द अदर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट for the process of photosynthesis is chlorophyll. It is actually green color pigment. एक ऐसी होती है green color की pigment होती है. कहाँ present होती है? Component of the cell. That component, smallest component of the plant cell, जिसको हम क्या बोलते हैं? Chloroplast. उसको हम cell organelle भी बोलते हैं, okay. उसके अंदर क्या होती है? What it has? It has a chlorophyll, right? What it does? ये क्या करती है? It traps the sunlight. Sunlight को क्या करती है? Trap करती है, ठीक है. किस लिए? For the process of photosynthesis, ठीक है. Photosynthesis takes place not only in the green leaf, but it takes place in any part of the plant. किसी भी green part of plant में photosynthesis होता है. जैसे green stem में होता है, right? Green branches में होता है. कहीं भी क्या होता है? photosynthesis होता है. जैसे for example cactus is a desert plant. इसमें क्या होता है? In this case जो इसका leaves होता है that is a reduced spine. जो लीफ किस में टर्न होता है? या किस फॉर्म में होता है? स्पाइन के फॉर्म में होता है. एंड इट्स स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी, राइट. तो अब यहाँ पे क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द स्टेम. सो ये जो प्रोसेस है अब लीफ ना करके किसके थ्रू ये हो रहा है? इट इज एक्चुअली गोइंग ऑन विद इन द स्टेम. स्टेम के अंदर होता है. सो वी कम टू नो जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर होगा, इधर ब्रांचेस में होगा, स्टेम में होगा या लीफ में होगा, वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे. किसके लिए? फॉर द फोटोसिंथेसिस. द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट. सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है ना. बिना सनलाइट के तो पॉसिबल ही नहीं है. क्लोरोफिल डज व्हाट? ये क्या करती है? ट्रैप करती है. अभी जो सन की एनर्जी है वी कॉल इट अ सोलर एनर्जी, ओके. दिस सोलर एनर्जी देन कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है. हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो जो केमिकल एनर्जी है क्या फॉर्म करती है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है. किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर. वो सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज ग्लूकोज, राइट. तो ग्लूकोज होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर, ठीक है. सो वी कम टू नो द ऑल द फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द वी हैव स्टडीड अबाउट the photosynthesis. Now it is very important to know the importance of photosynthesis.
जो इम्पोर्टेंस है ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि भाई अब फोटोसिंथेसिस हो गया तो क्यों ज़रूरी है भाई. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फोटोसिंथेसिस हेल्प्स द ग्रीन प्लांट टू प्रिपेयर द फूड. ओके, फूड को प्रिपेयर करने के लिए अगर वो होंगे उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. इफ़ दे ग्रो इन प्रॉपर वे तो वी कैन गेट आर रिक्वायरमेंट, हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे. फ्रॉम होम, फ्रॉम द प्लांट्स. अच्छा, व्हाट वी गेट फ्रॉम देम, वी गेट द फूड, है ना, फूड मिलता है हमें. और व्हाट वी गेट ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हाउ कैन वी लिव. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ना. सो वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर. दे रिलीज ऑक्सीजन, it's in the atmosphere, so we utilize oxygen, they utilize carbon dioxide. In this way we find there is a balance होता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर. बच्चों अभी हमने सीखा या देखा या पढ़ा या समझा कि प्लांट्स प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट. अदर देन कार्बोहाइड्रेट बच्चे दे प्रिपेयर प्रोटीन एज वेल एज द फैट्स और प्रोटीन्स को भी क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. ठीक है बच्चा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट डज प्रोटीन हैव. प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन. सो क्वेश्चन अराइज फ्रॉम वेयर दे गेट द नाइट्रोजन. कहाँ से नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है. जो नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है एटमॉस्फेयर में 78% अराउंड नाइट्रोजन है, राइट. तो प्लांट्स को हाउ दे गेट द नाइट्रोजन, है ना, उनको नाइट्रोजन कैसे मिलता है. एक्चुअली देयर आर वेरी मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनमें से एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, ये कहाँ होता है, लिग्मिनस प्लांट के नोड्यूल्स में होता है, राइट. ये क्या करता है, इट टेक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है एंड देन फिक्स इट इन अ वाटर सॉल्युबल फॉर्म, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. फिर इसको रिलीज करता है सॉइल में, और सॉइल से जो रूट है प्लांट का वो क्या करता जाता है, नाइट्रोजन को यूज करता जाता है फॉर इट्स ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट. अब आई टोल्ड यू कि प्लांट्स ऑल्सो प्रिपेयर द फैट्स, है ना. तो फैट्स कैसे, जैसे कुछ प्लांट्स हैं लाइक सनफ्लावर, मस्टर्ड, है ना, तो दे हैव ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इसको, ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं ऑयल्स में. फिर ये स्टोर कहाँ हो जाता है, इनके सीड में. तो इस तरीके से दे प्रिपेयर द फैट ऑल्सो. फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट्स ऑल्सो प्रिपेयर और सिंथेसिस vitamins as well as the minerals where in the fruits as well as in the vegetables. So we have come to know about the whole process of photosynthesis, its importance, and other than carbohydrate what is prepared in the plant. Now I will explain you about the heterotrophic mode of nutrition. I've told you before, मैंने आपको पहले भी बताया था about heterotrophic mode. Heterotrophic mode क्या होता है, in this process plants cannot prepare, yeah, any living organism cannot prepare, they have to depend on other, दूसरों पे डिपेंड होना ही पड़ता है. for what, for its food, अपने फूड के लिए. ऐसे कुछ प्लांट्स हैं बच्चे जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते. देयर आर फ्यू रीजंस, कुछ कारण होते हैं. जैसे वी टॉक अबाउट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, जो इस कंडीशन में कुछ प्लांट्स होते हैं दे आर नॉन ग्रीन, वो नॉन ग्रीन होते हैं, दे आर वाइट इन कलर. ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन पाइप और वाइट कलर के या फिर मिक्स ऐसा इस तरीके का कलर, दैट इज ए कोरल रूट. ऐसा इनमें ग्रीन कलर नहीं होता, एज दे डू नॉट हैव ग्रीन कलर, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर. सो व्हाट हैपेंड, they actually get their food from the dead and rotten material. okay, dead और rotten material से क्या होता है, organic matter होता है plants का या animals का, they get their food from that. ठीक है, absorb करते हैं और इसके बाद इनका क्या होता है बच्चे, growth होता है, they grow, they get their food from the dead and organic matter. So that's why we call them saprotrophic nutrition, and the examples are Indian pipe as well as a coral root. Other than this, there are few fungi like mushroom, molds, yeast are also example of
this type, that is saprotroph. They are saprotrophs. Now I'll explain you the other mode of nutrition, that is parasitic nutrition. Parasitic nutrition, first let me explain you the meaning of parasitic. Parasitic means depend on other, live. Now I'll explain you about the parasitic mode of nutrition. In parasitic mode of nutrition, the living organism lives inside or outside the host. ठीक है, होस्ट के अंदर या बाहर रहता है. इट गेट्स फूड फ्रॉम दैट, उससे अपना फूड लेता है और ग्रो करता है, और वो ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा एंड मिसल्टो एंड कस्क्यूटा इसका एग्जाम्पल है. वी अमरबेल ऑल्सो, हम इसको अमरबेल भी कहते हैं. दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, दे आर नॉन ग्रीन होते हैं. इनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हॉस्टोरिया. ओके, ये क्या करते हैं, इसको पेनिट्रेट करते हैं, किसके अंदर,